हाय एवरीवन। तो चलिए आज की क्लास में करते हैं इम्पॉर्टेंट आर्टिकल्स। ये वो सारे आर्टिकल्स हैं जो आपके एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे। फर्स्ट आर्टिकल है आर्टिकल 1, नेम एंड टेरिटरी ऑफ द यूनियन। आर्टिकल नंबर 3, formation of new states and alteration of area, boundaries and name of existing states. Article 13 है laws inconsistent with or in derogation of the fundamental rights. Article 14 है equality before law. Article 16 है equality of opportunity in matters of public employment. आर्टिकल 17 है एवोल्यूशन ऑफ अनटचेबिलिटी। आर्टिकल 19 है प्रोटेक्शन ऑफ सर्टेन राइट्स रिगार्डिंग ऑफ फ्रीडम ऑफ स्पीच। आर्टिकल 21 है प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। 21A है राइट टू एलिमेंट्री एजुकेशन। आर्टिकल 25 है फ्रीडम ऑफ कॉन्साइंस एंड फ्री प्रोफेशन, प्रैक्टिस एंड प्रोपेगेशन ऑफ रिलीजन। आर्टिकल 30 है राइट ऑफ माइनॉरिटी टू एस्टैब्लिश एंड एडमिनिस्टर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। आर्टिकल 31C है सेविंग ऑफ लॉज गिविंग इफेक्ट टू सर्टेन डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स। आर्टिकल 32 है रेमेडीज फॉर इन्फोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स इंक्लूडिंग रिट्स। आर्टिकल 38 है स्टेट टू सिक्योर अ सोशल ऑर्डर for the promotion of welfare of the people. Article 40 है organization of village पंचायत। नेक्स्ट आर्टिकल है जो कि इम्पॉर्टेंट है 44, यूनिफॉर्म सिविल कोड फॉर द सिटीजन्स। 45 आर्टिकल है प्रोविज़न फॉर अर्ली चाइल्डहुड केयर and education to children below the age of 6 years. 46 में है promotion of educational economic interest of scheduled caste, scheduled tribe and other bigger section. Article 50 है separation of judiciary from executive. 51 है promotion of international peace and security. 51A है fundamental duties. 72 है power of president to grant pardon etc. and to suspend, remit or commute sentences in certain cases. Article 74 है council of minister to aid and advise the president. Article 78 है duties of prime minister as respect the furnishing of information to the president etc. Article 1110 है money bills की definition को लेकर। Article 112 है एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट बजट का। 123 है पावर ऑफ प्रेसिडेंट टू प्रोमलगेट ऑर्डिनेंस ड्यूरिंग रेसेस ऑफ पार्लियामेंट। आर्टिकल 143 है पावर ऑफ प्रेसिडेंट टू कंसल्ट सुप्रीम कोर्ट। आर्टिकल 155 है अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर। 161 है पावर ऑफ गवर्नर to grant pardon etc. to suspend, remit or commute sentences in certain cases. Then important article है 163 council of ministers to aid advise the governor. 167 article है duties of CM with regard to the furnishing of information to governor etc. 169 है abolition or creation of legislative council in states. 200 है assent to bills by governor including reservation for president. 213 है power of governor to promulgate ordinance during recess of the state legislature. Article 226 है power of high courts to issue certain writs. Article 239AA है special provision with respect to Delhi. Article 249 है power of parliament to legislate with respect to the matter in the state list in the national interest. 262 article है adjudication of dispute relating to water of interstate rivers of river valleys. 263 है provision with respect to interstate council.
265 taxes not to be imposed save by authority of law. 275 है grant from the union to certain states. 280 है finance commission and 300 है suits and proceedings. 300A है person not to be deprived of property save by law authority of law. 311 है dismissal, removal और reduction in rank of person employed in civil capacity under the union or a state. नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट आर्टिकल है आर्टिकल नंबर 312 ऑल इंडिया सर्विसेज. 315 पब्लिक सर्विस कमीशन फॉर द यूनियन और फॉर द स्टेट. आर्टिकल 320 है फंक्शन ऑफ पब्लिक सर्विस कमीशंस. आर्टिकल 323A है एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स. आर्टिकल 324 है सुपरिटेंडेंट डायरेक्शन एंड कंट्रोल ऑफ इलेक्शन टू बी वेस्टेड इन एन इलेक्शन कमीशन. आर्टिकल 330 है रिजर्वेशन ऑफ सीट्स फॉर शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब्स इन द हाउस ऑफ द पीपल. आर्टिकल 335 है क्लेम्स ऑफ शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब टू सर्विस एंड पोस्ट. आर्टिकल 352 है प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी नेशनल इमरजेंसी. आर्टिकल 356 है प्रोविजन इन केस ऑफ फेल्योर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी इन स्टेट्स. आर्टिकल 360 है प्रोविजन एज टू फाइनेंशियल इमरजेंसी. आर्टिकल 365 है इफेक्ट ऑफ फेल्योर टू कंप्लाई विद एंड टू गिव इफेक्ट टू डायरेक्शंस गिवन बाय द यूनियन. आर्टिकल 368 है पावर ऑफ पार्लियामेंट टू अटेंड द कॉन्स्टिट्यूशन एंड प्रोसीजर therefore. आर्टिकल 370 है टेम्पररी प्रोविजन विद रिस्पेक्ट टू द स्टेट ऑफ जम्मू कश्मीर एंड आर्टिकल 370 को एंड कर दिया गया है, समाप्त कर दिया गया है. तो पहला आपका आर्टिकल है यूनियन के संघ के नाम और टेरिटरी के लिए. थर्ड आर्टिकल में क्या है कि नए स्टेट का फॉर्मेशन हो सकता है, जो बाउंड्रीज़ हैं उनको चेंज किया जा सकता है. आर्टिकल 13 क्या क्या है फंडामेंटल राइट्स के लॉ के लिए है. आर्टिकल 14 क्या है इक्वालिटी बिफोर लॉ है, न्याय से पहले समानता. आर्टिकल 16 में है कि जितने भी पब्लिक एम्प्लॉयमेंट है उसमें इक्वल अपॉर्चुनिटी सभी को दिया जाए. 17 में है एवोल्यूशन ऑफ अनटचेबिलिटी, छुआछूत की भावना नहीं रखनी है. आर्टिकल 19 में है फ्रीडम ऑफ स्पीच के लिए सर्टेन राइट्स है. एंड आर्टिकल 21 में लाइफ एंड लिबर्टी के लिए आज़ादी है, प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड लिबर्टी है. एंड 21A में एलिमेंट्री एजुकेशन का राइट है. 25 में फ्रीडम ऑफ कॉन्साइंस एंड फ्री प्रोफेशन प्रैक्टिस प्रोपेगेशन ऑफ रिलीजन, किसी भी धर्म को आप अपना सकते हैं, उसको कहीं भी प्रैक्टिस कर सकते हैं. आर्टिकल 30 में है माइनॉरिटी के राइट्स के लिए है, वो कहीं पे भी इस्टेब्लिश और एडमिनिस्टर कर सकते हैं एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को. आर्टिकल 31C है सेविंग ऑफ लॉ गिविंग इफेक्ट टू सर्टेन डायरेक्टिव प्रिंसिपल. आर्टिकल 32 में रिट्स के बारे में दिया हुआ है. आर्टिकल 38 में लोग के कल्याण के लिए है. एंड आर्टिकल 40 है विलेज पंचायत को ऑर्गेनाइज किया जा सकता है. यूनिफॉर्म सिविल कोड है, समान न्याय संहिता है. 45 में क्या है 6 ईयर से कम बच्चों के लिए और चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन. एंड 46 में क्या है शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब और जितने भी वीकर सेक्शन हैं उनके एजुकेशन और इकोनॉमिक के लिए प्रमोशन. 50 में क्या है कार्यपालिका को न्यायपालिका से अलग किया गया है. 51 में क्या है इंटरनेशनल पीस और सिक्योरिटी होनी चाहिए, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा. 51A में है फंडामेंटल ड्यूटीज़, हमारे मौलिक कर्तव्य
क्या क्या होने चाहिए। 72 में है प्रेसिडेंट के पास पावर है कि वो क्षमा कर सकते हैं किसी भी अपराध को। 74 में है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर टू एड एंड एडवाइस किसे लेंगे, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर टू एड एंड एडवाइस द प्रेसिडेंट। एंड 78 में क्या है, ड्यूटीज ऑफ प्राइम मिनिस्टर एज रिस्पेक्टेड द फर्निशिंग ऑफ इंफॉर्मेशन टू द प्रेसिडेंट एक्सेट्रा। 110 में क्या है, मनी बिल है। 112 में क्या है, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट है बजट के बारे में। 123 में क्या है, प्रेसिडेंट का पावर है ऑर्डिनेंस के लिए। एंड 143 में है प्रेसिडेंट टू कंसल्ट सुप्रीम कोर्ट। 155 में है गवर्नमेंट का अपॉइंटमेंट होना है। 161 में है पावर ऑफ गवर्नर टू ग्रांट परमिशन, गवर्नर का पावर है कि वो क्षमा कर सकते हैं किसी भी अपराध को। नेक्स्ट है 163 काउंसिल ऑफ मिनिस्टर टू एड एडवाइस द गवर्नर। 167 में है सीएम की ड्यूटीज़ ताकि वो फर्निशिंग कर सके गवर्नर को इन्फॉर्मेशन दें। 169 में है एवोल्यूशन और क्रिएशन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल इन स्टेट्स। 200 में है एसेंट टू विल बाय गवर्नर। 213 में है पावर ऑफ गवर्नर टू प्रोमलगेट ऑर्डिनेंस, गवर्नर के पास ऑर्डिनेंस के लिए है 213। एंड 226 है हाई कोर्ट के पावर्स। 239 ए है दिल्ली से रिलेटेड। 249 है पावर ऑफ पार्लियामेंट टू लेजिस्लेट विद रिस्पेक्ट टू ए मैटर इन द स्टेट लिस्ट। 262 में है इंटर स्टेट रिवर्स को लेकर। 263 में इंटर स्टेट काउंसिल्स को लेकर। 265 में है टैक्स नॉट टू बी इम्पोज्ड से बाय अथॉरिटी ऑफ लॉ। एंड 275 में है यूनियन ग्रांट फ्रॉम यूनियन टू सर्टेन स्टेट्स। 280 है फाइनेंस कमीशन। 300 सूट्स एंड प्रोसीडिंग्स। 300 ए में है पर्सन नॉट टू बी डिप्राइव्ड ऑफ प्रॉपर्टी, लॉ राइट ऑफ प्रॉपर्टी है इसमें 300 ए में। एंड 311 में क्या है, रिमूवल डिसमिसल और रिडक्शन इन रैंक ऑफ पर्सन एम्प्लॉयड इन सिविल कैपेसिटी अंडर द यूनियन ऑफ स्टेट। 312 में है ऑल इंडिया सर्विसेज, जितने भी इंडिया के सर्विसेज है वो। एंड 315 में है पब्लिक सर्विस कमीशन, यूनियन के लिए और स्टेट्स के लिए। 320 में है फंक्शन पब्लिक सर्विस कमीशंस के। एंड 323 में है एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल। 324 में क्या है, इलेक्शन कमीशन। 330 में क्या है, सीट्स का रिजर्वेशन एससी और एसटी के लिए, कहाँ पे, हाउस ऑफ पब्लिक में। 335 में क्या है, क्लेम ऑफ शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब टू पोस्ट एंड सर्विसेज। 352 है प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी, नेशनल इमरजेंसी किसमें है, 352। 356 में है प्रेसिडेंट रूल स्टेट इमरजेंसी। 360 में है फाइनेंशियल इमरजेंसी। 365 में है इफेक्ट ऑफ फेलियर टू कंप्लाई और इफेक्ट गिवन डायरेक्शन टू द यूनियन, प्रेसिडेंट रूल। 368 में क्या है, पावर ऑफ पार्लियामेंट टू अटेंड कॉन्स्टिट्यूशन एंड प्रोसीजर देयर फॉर। 370 में है जम्मू कश्मीर स्टेट को लेकर, जो कि समाप्त हो चुका है, अब 370 को हटा दिया गया है। तो ये आज के सारे टॉपिक्स इम्पॉर्टेंट है। इसमें जितने भी आर्टिकल्स है एग्ज़ाम में इसी के अंदर से ही आएंगे, तो आप लोग अच्छे से कीजिए, इसको एक बार दो बार खुद से रिवाइज़ कीजिए और अच्छे से रिपीट करके अच्छे से माइंड में याद करके रखिए ताकि एग्ज़ाम्स में छूटे नहीं। थैंक यू।